વચન જોઈએ છે. તમે વચન આપશો મને? મારે એ વચન જોઈએ છે કે જેમ મેં કહ્યું કે પાટણ જિલ્લો આખો સાફ કરીને કોંગ્રેસને આપીશું, તમે મહેસાણા જિલ્લો સાફ કરીને કોંગ્રેસને આપશો? 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 कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस. हमारे प्रमुख साहब भी यहाँ है, हमारे मेहमान है. तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आपकी ओर से मेरी ओर से मैं स्वागत करते हुए एक नारा लगाऊंगा, फिर मैं विदा लूंगा आपके सामने से. मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आप आगे बढ़ो. मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आप आगे बढ़ो. मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आप भारत विजय करो. कांग्रेस जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा. धन्यवाद. गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से. गांधी लड़े थे गोरों से, सरदार लड़े थे गोरों से. આપણી વચ્ચે આપણા શીર્ષસ્થ નેતૃત્વ આવ્યું છે ત્યારે હું જિલ્લા પ્રમુખને વિનંતી કરું કે જે લોકોને કે જલ્દીથી સ્વાગત પતાવે પછી આપણા શીર્ષસ્થ નેતૃત્વનું માર્ગદર્શન લેવાનું છે. કોંગ્રેસ આજના મહેસાણા જિલ્લામાં પધારે આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે સાહેબ, આપણા પાડોશી વિસ્તારના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અશોક ગેહલોતજી, આપણા ગુજરાતના પ્રભારી એવા રઘુ શર્માજી, ગુજરાતના પ્રદેશના પ્રમુખ આદરણીય જગદીશ ઠાકોર સાહેબ, તેમજ વીરેન્દ્રસિંહજી, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, મહેસાણામાં વેલકમ. અને આપ સૌ પધારેલ મોટી સંખ્યામાં તમારો થેન્ક યુ, આભાર. હવે હું જેને કહીશ તે સ્ટેજ ઉપર પહેલા તો યુથ કોંગ્રેસના યુથના સંગઠન તાલુકા શહેર સંગઠનના પ્રમુખ હોય છે. તાલુકા શહેર સંગઠનના પ્રમુખો ચલો ફટોફટ. ખડગે સાહેબનું સ્વાગત કરવાનું. તાલુકા શહેરના સંગઠનના પ્રમુખ બધા જ તાલુકા શહેરના સંગઠનના પ્રમુખો. આદરણીય પ્રમુખ સાહેબ અધ્યક્ષશ્રીનું સ્વાગત કરશે બધા જ. એમાં રઘુ શર્માજી, ગેહલોતજી, જગદીશ ઠાકોર સાહેબ. કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ તેમજ શહેરના પ્રમુખો, વિધાનસભાના પ્રમુખો આદરણીય અધ્યક્ષ સાહેબનું સ્વાગત કરશે. કોમેન્ટ આપી. કોર્પોરેટરશ્રીઓ તમામે તમામ મહેસાણા નગરપાલિકાના એ પણ સાહેબનું સ્વાગત કોમેન્ટ આપી કરશે. स्वागत प्लीज नेता जो स्वागत थी जाए तमाम कॉर्पोरेटर सीओ મહેસાણા નગરપાલિકાના જયદીપસિંહ અને મેઘાબેન કોડભાઈ તે પણ બધા એમની ટીમ આદરણીય ખડગે સાહેબનું સ્વાગત કરશે. ઘનશ્યામ भी जोड़ी जाए.
એટલે આ તો કોઈ જોડી જાય અંદર હવે શહેર પ્રમુખ ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રેસિડેન્ટ સ્વાગત કરશે. સૌ મિત્રો જેમણે સ્વાગત કરી દો અને શહેર પ્રમુખ સાથે જાય. શહેર પ્રમુખ અને જિલ્લા પ્રમુખ સ્વાગત કર્યા પછી સ્વાગત પૂરું થયું. ઘણા લાંબા સમયથી આપ સૌ લગભગ 3 વાગ્યાથી આપ સૌ બેઠા છો ત્યારે સૌ મિત્રોને વિનંતી કરું કે હવે બધા જ કાઉન્સિલરો જેને સ્વાગત કરવું એ બતાવો અને પછી આપણે હવે માંગ ખૂબ લાંબો સમય થયો છે એટલે વધારે નહીં કહેતા. આ વિશાળ જનમેદનીને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના મહાન જુજારુ અધ્યક્ષ અને ગુજરાતના દરેક ગામડાઓમાં જેને ચેતના પેદા કરી છે એવા આદરણીય જગદીશભાઈ ઠાકોરને વિનંતી કરું કે આ વિશાળ જન સમુદાયને પોતાનું વક્તવ્ય આપે. સ્વાગત થઈ ગયું હોય બધા મિત્રો થઈ ગયો ફટાફટ આજે મહેસાણા જિલ્લાના તમામ ઉમેદવારો માટે ચૂંટણી પ્રચારમાં છેક દિલ્હીના દરબારમાંથી આપણી વચ્ચે આપણને આશીર્વાદ આપવા માટે, આપણને બળ અને તાકાત આપવા માટે આવેલા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રમુખ આપણા સૌના લાડીલા ખડગે સાહેબ, એવા જ 2017 ને અત્યારે પણ આપણી વચ્ચે સતત આપણને ચૂંટણીમાં માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે એવા રાજસ્થાનના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત સાહેબ સતત 14 મહિનાથી આપણી વચ્ચે રાજસ્થાનમાં ઘર બાર કુટુંબ પરિવાર છોડીને અહીંયા આપણી વચ્ચે રહેતા રાજસ્થાનના પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી અને ગુજરાતના ઇન્ચાર્જ ડોક્ટર રઘુ શર્મા સાહેબ, એવા જ આપણા ઉત્તર ગુજરાતના ઇન્ચાર્જ વિરેન્દ્રસિંહજી રાઠોડ, પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સૌ પદાધિકારીઓ, મહેસાણા જિલ્લાના આપણા સૌ ઉમેદવાર ભાઈઓ અને બહેનો, સમગ્ર શહેર અને જિલ્લામાંથી પધારેલા મારા મુરબ્બીઓ, ભાઈઓ બહેનો, યુવાન દોસ્તો ને વહાલા પત્રકાર મિત્રો, માન્ય ગેહલોત સાહેબ, માન્ય ખડગે સાહેબ આપણી વચ્ચે છે એટલે વધારે સમય આપનો નહીં લઉં, પણ જે રીતે અહીંયા જયનારાયણભાઈ વ્યાસ કહીને ગયા છે કે બનાસકાંઠાની 99 સીટ કોંગ્રેસ જીતે છે, પાટણની તમામ સીટો કોંગ્રેસ જીતે છે, અને એ રીતે આપ સૌએ આશીર્વાદ આપવાના છે કે ખડગે સાહેબ ને અશોક ગેહલોત સાહેબની હાજરીમાં મહેસાણાની તમામ વિધાનસભાની સીટો કોંગ્રેસ જીતે છે. આ આશીર્વાદ તમારા સૌના લેવા માટે કોંગ્રેસનું વરિષ્ઠ નેતૃત્વ અહીંયા ઉપસ્થિત થયું છે. મારે લાંબી વાત નથી કરવી. સવાલ ઉભો થયો છે ગુજરાતમાં અહંકારીઓની સામે લડવાનો. સવાલ ઉભો થયો છે 27 વર્ષના શાસનમાં જે અહંકાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં આવી ગયો છે. દેશનું નેતૃત્વ કરતા પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રી જે રીતે પોતાની ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર વ્યવહાર અને વર્તન કરે છે પોતાને નહીં ગમતા લોકો સાથે, જે રીતે એમના ટીકા કરવા વાળા લોકોની સાથે જે વ્યવહાર અને વર્તન કરે છે, આખા દેશમાં એમના સિવાય કોઈ રહેવું ના જોઈએ, એમના સિવાય કોઈ સત્તા ઉપર ના રહેવું જોઈએ, એમને કોઈ સવાલ ના થવો જોઈએ, એમની કોઈ ટીકા ના થવી જોઈએ, એવી માનસિક
બીમારીથી પીડાતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વની સામે ગુજરાતની 6.5 કરોડની પ્રજાએ નક્કી કરી લીધું છે કે અભિમાન તો રાજા રાવણનું પણ નથી રહ્યું ને તમારું પણ અભિમાન નહીં રહે. એ પ્રજાનો સંદેશો સમગ્ર ગુજરાતનો પ્રવાસ કરીને આપની વચ્ચે આવ્યો છે. આખા ગુજરાતમાં એ સૌરાષ્ટ્ર હોય, મધ્ય ગુજરાત હોય, દક્ષિણ ગુજરાત હોય, આજે ઉત્તર ગુજરાતના પ્રવાસે હતા. ચારે બાજુ એક જ વાત છે કે યાર બધું રાજકારણમાં ચાલે પણ આવી કિડનાપખોરી ના ચાલે, દુશ્મનાવટ ન ચાલે, પોતાના મત સાથે સંમત ના હોય અને જીવવાનો અધિકાર નથી એવી વાત કરવા વાળા ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે જંગે એલાન ગુજરાતની પ્રજાએ ગુજરાતીઓએ ઉપાડ્યું છે. ત્યારે આપ સૌને વિનંતી કરું છું, 27 વર્ષના શાસનમાં આજે તમે મહેસાણામાં આવી અને પેટ્રોલ ને ઓઇલની ચકલીઓ મૂકવાની વાત કરીને ગયા હતા. જો એ ચકલીઓ આજે મૂકી હોત તો તમારે આ ભાષણ કરવાના ન હોત. મહેસાણાની અંદર સમાજો વચ્ચે બબ્બે નેતાઓને લડાવી અને તિરાડો તમે ઉભી કરી નાખી. સમાજોને ખતમ કરી નાખ્યા. નેતૃત્વ તમારી પાર્ટીનું તમે ખતમ કરી નાખ્યું. સામાજિક નેતૃત્વ તમે ખતમ કરી નાખ્યું. અને આજે વાતો કરો છો મારા ગુજરાતની, આજે વાતો કરો છો મેં ગુજરાત બનાવ્યું, આજે વાતો કરો છો સદભાવનાની. નહીં સ્વીકારે પ્રજા. અને એટલે જ મહેસાણાની અંદર પણ આપણી પાસે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. 27 વર્ષના શાસનમાં એમનો અહંકાર જે 7મા પાતાળે ને આસમાનમાં પહોંચ્યો છે, એ અહંકારીઓને પાછા ધરતી ઉપર તમે લાવો. એ જ વિનંતી સાથે કોંગ્રેસના તમામ ઉમેદવારોને વિજય બનાવશો, આપના આશીર્વાદ આપશો. સાચા સાધનો છે, પૂરતી વ્યવસ્થાઓ નથી કોંગ્રેસ પાસે. અને જે લોકો કહેતા હતા કોંગ્રેસ ક્યાંય દેખાતી નથી, કોંગ્રેસ આમ છે, કોંગ્રેસ ફલાણી છે, કોંગ્રેસ ક્યાંય નથી દેખાતી. તો 1 મહિનાથી 1 અઠવાડિયામાં 5 દિવસ દિલ્હીનો આખો દરબાર લઈને ગુજરાતમાં કેમ પડ્યા છો એ કોંગ્રેસ પૂછે છે. અને એ જ કોંગ્રેસની તાકાત છે, કોંગ્રેસના કાર્યકરોની તાકાત છે. ગુજરાતના 6.5 કરોડ ગુજરાતીઓનો આશીર્વાદ છે. અને આશીર્વાદના જાતે મહેસાણા જિલ્લાના તમામ ઉમેદવારોને આપ વિજય બનાવશો એવી વિનંતી સાથે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત. આભાર જગદીશભાઈ. કોરોના કાળની અંદર રાજસ્થાનમાં જેમણે યશસ્વી કામગીરી કરી, પરંતુ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બને એના માટે 1.5-2 વર્ષથી ગુજરાતમાં ધામા નાખનાર આદરણીય ડોક્ટર રઘુ શર્માજીને વિનંતી કરું કે વિશાળ જન સમુદાયને સંબોધે. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय जगदीश ठाकुर जी, एआईसीसी के उत्तर गुजरात के प्रभारी मेरे छोटे भाई वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत सिंह ठाकुर जी, चंदन यादव जी, एआईसीसी सेक्रेटरी टीके पटेल जी, महसाना से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किरीट पटेल जी, विसनगर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अरविंद पटेल जी, ऊंझा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे मुकेश भाई खेरालू देसाई, उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी, भौतिक भट्ट जी शहर अध्यक्ष, भरत ठाकुर जी बेचरा जी के विधायक, सम्मानीय अलका क्षत्रिय जी, पूर्व सांसद डॉक्टर जीतू भाई पटेल जी, गीताबेन पटेल जी, पंकज पटेल जी, मंच पे बैठे हुए सभी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेतागण और महसाना के सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों,
माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आने वाली 5 तारीख को गुजरात के भविष्य का फैसला गुजरात की जनता को करना है, आपको करना है। मैं 2002 में भी जब पहली बार मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब, उत्तर गुजरात में मुझे जिम्मेदारी दी थी, मेरे 27 साथियों के साथ पूरा 1-1.5 महीना मैं महसाना में रहा था। ये मुकेश भाई बैठे हैं, इन्होंने मेरे को एक दिन फोटो भेजी, 20 साल पुरानी फोटो, मुझे माला पहनाते हुए। आज मेरा सौभाग्य है, मैं प्रभारी बना और ये 20 साल से मेहनत कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान हमारे पड़ोस में लगता है। जो राहुल गांधी जी ने वचन दिए गुजरात की जनता को, वो वचन हम राजस्थान में पूरा कर चुके हैं, कर रहे हैं। आज बात हो रही थी अहमदाबाद में कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। मैंने कहा चुनाव घोषणा पत्र तो हम विपक्ष में है, हम जारी करेंगे, उनको तो अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि जनता ने 27 साल जिनको लगातार सरकार में बनाए रखा, आज वो वायदे करें, ये बीजेपी को शोभा नहीं देता। उनको ये बताना चाहिए कि 27 साल में हमने गुजरात की भलाई के लिए क्या किया है। मैं आरोग्य मंत्री था, गहलोत साहब यहां बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में राजस्थान ने एक व्यक्ति को इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ने दिया। ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की जगह वेंटिलेटर। मैं एक बहुत भयावह वीडियो देख रहा था, महसाना जिले के एक बुजुर्ग दंपत्ति, 80 साल की उम्र उनकी। राहुल गांधी जी ने जब जिन लोगों ने कोरोना में दम तोड़ा उनसे बात की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो फपक फपक के रो रहे थे। 2 बच्चे थे जवान, कमा के देते थे परिवार में, दोनों की डेथ हो गई। 80 साल में वो बुजुर्ग नरेगा में जाके मजदूरी करने को मजबूर है। अरे भाई, यहां 3 लाख लोगों ने दम तोड़ा, ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिला, अस्पतालों में बेड नहीं मिला, और एक इंजेक्शन जो जीवन रक्षक है रेमडेसिविर, जो अस्पताल में मिलना चाहिए, राजस्थान में एक नया पैसा हम नहीं ले रहे थे। राजस्थान में अस्पताल में था। मुझे ताज्जुब हुआ, गुजरात में वो कहां था? वो इंजेक्शन अस्पताल की बजाय बीजेपी के दफ्तर में था। 6000 का इंजेक्शन 25,000 में ब्लैक हो रहा था, और यहां लोग तड़प तड़प के इलाज के भाव में अपना दम तोड़ रहे थे। हालात बहुत गंभीर दौर से पूरा गुजरात गुजरा है। हम क्यों लोगों को बचा पाए कि हमने गरीब के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सरकारी अस्पताल खोले, और सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, आईसीयू बेड था। राजस्थान के आसपास के 6 राज्यों के लोग हमारे यहां इलाज कराने आ रहे थे, और हम फक्र के साथ 40,000 तक का इंजेक्शन टोसिलिजुमैब जापान से इंपोर्ट करके और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लगा रहे थे। एक नया पैसा किसी का खर्च नहीं हो रहा था। लंबी बात नहीं करूंगा, ये 5 रुपए लीटर हमारे जो पशुपालक हैं, 1 लीटर पे 5 रुपए बोनस राजस्थान में दे रहे हैं। 10 लाख का बीमा राजस्थान के हर परिवार का है, और उसके ऊपर हार्ट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम हो जाए, कैंसर हो जाए, लोगों के घर बिक जाते हैं इलाज कराने में, गहने बिक जाते हैं। ये अशोक गहलोत जी बैठे हुए हैं, ये सरकार हमारी राजस्थान में कांग्रेस की है। 10 लाख के ऊपर भी 20 लाख लगे, 25 लाख लगे, एक नया पैसा सरकार दे रही है। यह 27 साल से जिनको आप चुन रहे हो, जो आज गली गली वोटों की भीख मांगने पे मजबूर हुए हैं, वो कितना धोखा गुजरात की जनता के साथ करेंगे, ये सोचने की विषय है। ये वोट की ताकत जो कांग्रेस पार्टी ने, हमारे देश के महान नेताओं ने इसीलिए दी है कि इसी टाइम आप तय कर सकते हो
कि इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ये सिर्फ लफाजी करते हैं। रिजेक्ट करो ऐसे लोगों को। एक बार कांग्रेस, हम आपको कह रहे हैं, गुजरात के लोग महसूस करेंगे कि गरीब की भी शिक्षा की व्यवस्था कैसे कांग्रेस करती है, मध्यम वर्गीय की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करती है कांग्रेस, कैसे चिकित्सा की व्यवस्था करती है, कैसे हमारे सामाजिक सुरक्षा का दायरा, 1 करोड़ लोगों को पेंशन घर बैठे मिल रही है, बुजुर्गों को पेंशन, विधवा बहनों को पेंशन, विकलांग भाई बहनों को पेंशन, 1000 रुपया किसान के, बिजली का बिल हर महीने सरकार भर रही है। 42 लाख लोगों को राजस्थान में 0 बिल आया है बिजली का, और यहां कुछ नहीं है, जो कि बार बार हम बिना सोचे समझे भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, आदरणीय अध्यक्ष जी बोलेंगे, लेकिन मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, ये समय बदलाव का है और गुजरात को आज बदलाव की सख्त जरूरत है। हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहता है, इनके झांसे में आना नहीं। 5 तारीख को हाथ के निशान पे बटन दबा के कांग्रेस के उम्मीदवारों को सभी जाति बिरादरी के लोग, सभी कौम के लोग, सभी धर्म के लोग आशीर्वाद दीजिए, कामयाब करिए। धन्यवाद। રાજસ્થાનના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી અને ગાંધી વિચારધારાના પ્રેરિત એવા આદરણીય ગેહલોત साहब को मैं विनती करता हूं कि जनसभा को संबोधित करें। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा जी, जगदीश ठाकुर साहब आपके अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के, सांसद नसीर हुसैन साहब, वीरेंद्र राठौर जी, AICC सचिव चंदन यादव जी, बहन अलका चतुर्वेदी, जितेंद्र पटेल जी, रंजीत ठाकुर जी जिलाध्यक्ष, और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जितने बैठे हुए हैं, PK पटेल साहब, सीधे चावला जी, गोपाली ठाकुर, केश पटेल साहब, अरुण पटेल जी, प्रवीण परमार जी, मुकेश देसाई जी, और हमारे भट्ट साहब, भारत ठाकुर जी, पंकज पटेल जी, सम्मानीय मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज महसाना में आने का अवसर मिला। पुनः पिछले चुनाव में जब मैं प्रभावित था यहाँ का, तब भी आने का अवसर मिलते थे। रघु समाज ने ठीक कहा, 20-22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, तब भी मैं लगातार आता था। आज आप खड़गे साहब को सुनेंगे और वक्त काफी ज्यादा हो गया है। सब बातें रघु समाज ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताई, जो वचन राहुल गांधी ने दिए हैं अपने को। पहले घोषणा पत्र जारी होते थे, अब कांग्रेस के जन घोषणा पत्र जारी होते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, पहले आप जनता से पूछो कि क्या आपकी अपेक्षा है सरकार से, डिमांड, लोकप्रिय डिमांड क्या क्या है। जो पूरे गुजरात में जो कमेटी बनाई गई, वो कमेटी ने दौरे किए और वो सुझाव समावित किए और वचन दिए आपको, और कई और वादे किए गए आपसे। कांग्रेस ने तय किया है कि हम चुनाव के बाद में भी उस घोषणा पत्र को हम लोग सरकारी डॉक्यूमेंट बनाएंगे। 22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने एक चर्चा शुरू करी थी, क्योंकि जनता ही भूल जाती है, जनता इतनी भली होती है कि लिखा तो कर ही नहीं उन्हें सरकार, और सरकार बनने के बाद में सब लोग भूल जाते मैनिफेस्टो में क्या लिखा था। हमने कैबिनेट की पहली मीटिंग में हम लोग चीफ सेक्रेटरी को सौंपते हैं मैनिफेस्टो को, तो इसके आधार पर जो वादे करके हम चुनाव जीत के आए हैं,
वो आपको इसके अनुसार काम करना है, सरकार का फैसले करना है। तमाम सेक्रेटरी कलेक्टर सबको दिए जाते हैं। वही वादा हम करना है आपसे, जो वचन राहुल गांधी दिए हैं, जो आपकी जानकारी में होगा, मैं उनको क्या रिपीट करूं। चाहे वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात हो, तेरे को समझ भी गए 10 लाख का बीमा आपका मुफ्त इलाज का, बहुत ही अच्छी योजना बनाई जो देश में नहीं शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी। आपका सीटी स्कैन फ्री, MRI फ्री, डायलिसिस फ्री, और रघु जी ने कहा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो अलग से सरकार पैदा कर सकती। इस प्रकार से हम लोगों ने 300 यूनिट की बात की गई, बिजली की वो फ्री, किसानों को 3 लाख तक का कर्जा माफ होगा आपका, इंग्लिश स्कूल खुलेगी, कोरोना के जो डेथ होगी परिवारों को 4 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा उनको, सरकारी नौकरियों के बजाय अभी जब तो नौकरी नहीं होगी 3,000 रुपये भत्ता मिलेगा, और सरकारी कर्मचारी ओल्ड एज पेंशन OPS लागू की हम लोगों ने, वो लागू होगी। शहरी रोजगार योजना लागू की गई है, जो नरेगा की तरह 100 दिन का रोजगार देती शहरों के अंदर भी। ये भी हिंदुस्तान के कोई 1-2 शहरों में होगी योजना, इतनी शानदार योजना ये बनाई गई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप ये गायों सांड जो है, मैं बचपन से देखता हूँ, जब कभी कांग्रेस की मीटिंग होती है तो बीजेपी वाले इंसानों को गाँव को भेज देते मीटिंग को डिस्कस करने के लिए। नहीं बात नहीं, आप लोग शांति रहो, ये भी इसको निकाल देंगे चुपचाप। और ये इनकी फीसद से बीजेपी वालों की गाँव को सांडों को भेजते हुए मीटिंग हो रही है। वादे करेंगे, मोदी जी अमित शाह जी गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री जी इतने चिंतित क्यों हैं? अगर 5 साल सुशासन होता, अच्छे काम करते तो शायद प्रधानमंत्री जी को आना ही नहीं पड़ता यहाँ पर। वैसी वोट देने की जनता। गुजरात का हमारा जो है पहले मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री बने। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी खड़गे साहब आपको विस्तार से बात करेंगे। भाई और बहनों, आपसे मेरी अपील है कि आप कृपा करके इस बार 27 साल के बाद में एक अवसर दीजिए वापस कांग्रेस को। कांग्रेस वचन किए वो निभाएगी और सब मजबूत करेगी। राहुल गांधी की यात्रा को आप लोग सुन रहे होंगे, उनकी प्रेस वार्ता को सुन रहे होंगे। यात्रा बहुत शानदार चल रही है, लाखों लोग शामिल हो रहे हैं उसके अंदर। उनका संदेश यही है, देश में प्यार मोहब्बत शांति भाईचारा हो, हिंसा नहीं हो, नंबर 1। और नंबर 2, महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, ये समाप्त होनी चाहिए। पूरे देश के हर गांव के हर घर की मांग है केंद्र सरकार से। उसके लिए कारवां चल पड़ा राहुल गांधी जी का। आप सबका आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ में है, आप सबकी दुआएं साथ में हैं पूरे देशवासियों की। इसीलिए राहुल गांधी का कारवां बहुत कामयाबी के साथ में 2000 किलोमीटर यात्रा पूरी कर चुके हैं और अब सिर्फ 1500 किलोमीटर बाकी रही है। तो आप सोच सकते हो कि आजादी के बाद में सबसे लंबी यात्रा, पैदल यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और पूरे देशवासियों की भावना, उनकी मांगे, उनकी दुख तकलीफ को केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए, जिससे कि अगर गुजरात ने जिता दिया कांग्रेस को, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे देश के लोग बहुत की राहत महसूस करेंगे, क्योंकि महंगाई कम होगी,
तारीख को बना होगा। बेरोजगारी कम होगी, नौजवानों को राहत मिलेगी और देश में हर धर्म जाति वर्ग सब में भाईचारा प्यार स्नेह मोहब्बत रहे, झगड़े नहीं हो, हिंसा नहीं हो, ये माहौल बनना शुरू हो जाएगा। उनको समझ में आ जाएगी केंद्र सरकार को कि गुजरात की जनता हराई हमें क्यों है, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी है और शांति सद्भावना का अभाव है। इसलिए ये मौका देंगे। ये चुनाव खाली गुजरात का नहीं रहेगा, ये चुनाव पूरे मुल्क को एक संदेश देने वाला है। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ગોચરો વેચ્યા એટલે ગાય માતાઓને અહીંયા આવવું પડે છે। વાત યાદ રાખજો અને વાતને કહેવા માટે એક અડીખમ યોદ્ધા તરીકે કોંગ્રેસના મહાન અધ્યક્ષ આદરણીય મલ્લિકાર્જુન ખડગેજીને વિનંતી કરું કે આ વિશાળ જનસમુદાયને સંબોધન કરે। इस मंच पर नहीं छोटी थैंक यू। इस मंच पर उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिन्होंने आपको अपनी ही भाषा में बड़ी जोरदार तकरीर करके समझाया है, श्री जगदीश ठाकुर जी, इंचार्ज एआईसीसी के रघु शर्मा जी, वीरेंद्र राठौर जी, पंकज पटेल जी, डॉक्टर जीतू भैया पटेल जी, चंदन यादव जी, डॉक्टर नासिर हुसैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पीके पटेल महसाना कैंडिडेट, सीते चावड़ा बीजापुर कैंडिडेट, कीर्ति पटेल किरीट पटेल, विश्वनगर मुकेश चौधरी खेरालू कैंडिडेट, अरविंद पटेल ऊर्जा कैंडिडेट, अमृत ठाकुर बहुचेता कैंडिडेट, प्रवीण परमार खड़ी कैंडिडेट और इस मंच पे बैठे हुए सारे नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों, भाई और बहनों, मीडिया के मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों और इस सभा को भंग करने के लिए जिन्होंने गाय
तेजा उनका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनकी आदत है जहां कहीं भी शांति होना उसको भंग करना, और आपकी आदत है भंग करने वालों को जवाब देना, और ऐसे चीजों से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम महात्मा गांधी जी की औलाद है, महात्मा गांधी जी के शिष्य हैं। महात्मा गांधी जी ने जो सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया वो पढ़कर देश को हमने आजाद बनाया। वल्लभ भाई पटेल जो लोह पुरुष है उनका गुजरात ये है, इसीलिए कोई हमको डरा नहीं सकता और हम डरेंगे नहीं। तो भाइयों, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए कि अगर आप इस चुनाव में कांग्रेस को जिताएंगे तो सारे देश का नक्शा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, और वो शक्ति आप में है। हम तो भाषण देंगे, अपनी बात तो कहेंगे, लेकिन देश को सुरक्षित रखना है, लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है, संविधान को अगर आपको सुरक्षित रखना है, गरीबों के हितों में अगर आपको काम करना है, अपने हकूक को हिफाजत करना है, तो आप यहीं से कर सकते हो, और वो शक्ति आप ही के पास है। एक बार आप करके दिखा, फिर मोदी और शाह साहब कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई ये राजकीय में, पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में ये तो हमेशा होता है, एक पार्टी आती है, एक पार्टी जाती है, और बड़े समाधान के साथ चुनाव होते हैं। लेकिन अब चुनाव को ही खत्म करने का इरादा इस देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। कांग्रेस एक आप कभी गुजरात में की नहीं, और 27 साल एक पार्टी हुकूमत में यहां पर है, और 8 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते कंप्लीट किए हैं। यहां तो वो 13.5 साल थे, और वहां 8 साल। 13 और 8 कितना हो गया? क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स जरा कच्चा है, जरा आप बोलिए। 21.5 साल। 21.5 साल में अगर आप गुजरात को सुधार नहीं सकते, वहां के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, यहां इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकते, छोटे मोटे कारोबारियों वालों को हाथ को काम नहीं देते, तो ये तो शर्म की बात है। और इतना सारा शक्ति आपके पास लोगों ने दिया था और दिया है, अपने लोगों की हिफाजत आप करना भूल गए। और ये
आज जो मेहसाना सिटी है, यहाँ पर तो बिजनेस सेंटर है इधर नॉर्थ गुजरात में, और यहाँ पर लोग अपने मेहनत से काम करके जी रहे हैं। इसकी मेहरबानी नहीं है, वो खुद डायरी फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, करके वो लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर गलती से कोई उनको पूछे साहब मेहसाना में डायरी किसने बनाई, तो वो जरूर बोलेंगे ये मोदी ने किया है बोलेंगे। लेकिन हुआ कब? यहाँ 1963 में ये डायरी की स्थापना यहाँ हुई। लेकिन उसको पूछो हर चीज, ये बंगला किसने? मैंने किया। ये रोड किसने? मैंने किया। मैं के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के पास कुछ नहीं है। बनाया हमने। हमारे पास एक कहावत है, मेहनत करे मुर्गा साहब, अंडा खाए फकीर साहब। अरे मेहनत तो हमने की, कांग्रेस ने डायरिया बनाई, आनंद डायरी बनी, कुरियन ने बनाया, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया, त्रिभुवन पटेल उन्होंने काम किया, करके आज आनंद डायरी के दूध, दही, सब चीजें, घी, सभी चीजें बाहर जाती है। मैं वो डायरी, आनंद डायरी देखने के लिए 1972 में वहां गया था। जब मैं एमएलए पहली बार बना तो मैं असेंबली में बोर्ड ऑफ रीजेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रीजेंट होते हैं, अब सिंडिकेट मेंबर वो एक थे। उस वक्त हम 7 लोगों का टीम यहाँ आया। अब हम कुरियन से मिले, आनंद डायरीज के एक्टिविटीज को भी देखें, यहाँ तक कि वल्लभ भाई पटेल जी का जो गांव है वहां पर भी उनको घर देखने के लिए हम गए। तो वहां पर उतना कोई स्मारक नहीं बना हुआ था उस वक्त। तो हम वहां के लोगों को पूछे ये क्यों नहीं बना? नहीं, आपसी झगड़े में रुक गया है, जमीन नहीं मिल रहा है, इसीलिए हो रहा है। लेकिन आज आनंद डायरी और ये मेहसाना की जो डायरी है, यह सारे हिंदुस्तान में मशहूर है, बाहर मशहूर है। ये सारी चीजें किसने की? 1946 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, ये 63 में बनाया, इसीलिए लोगों के हाथ में आज पैसा है। तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? आप आने के बाद तो ऐसा हुआ कि जो सरकार में नौकरियां हैं, वैकेंसीज है, 3 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज है। टीचर के वैकेंसीज 28,000 टीचर वैकेंसीज है। क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? 43% युवा 18 से लेकर 30-35 साल के अंदर 43% लोगों को नौकरी नहीं है। आप क्यों नहीं दे रहे? ये रिप्लाई देवा, इसका उत्तर दो। नौकरी है तो भी आप भर रहे नहीं। जब चुनाव आ रहा, अब कह रहे हैं हम ये 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। अरे भाई, पहले के 15 लाख कहां गए? उस वक्त तो आपने कहा था कि हर एक के जेब में
मैं 15-15 लाख पैसे ला के दूंगा, सालाना 2 करोड़ नौकरियां हिंदुस्तान में दूंगा। अब 18 करोड़ नौकरियां वहां के, 5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां यहाँ के, और कईयों नौकरियां वैकेंसी खाली पड़े तो भर्ती नहीं कर रहे। और चुनाव में आके बार बार वे कहते हैं हम नौकरियां भरेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, ये बात हमेशा कह रहे हैं। अब चुनाव में तो जोर जोर से कहते हैं, जब लोग उनको जाके पूछते हैं साहब आपने तो कहा था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का, 15 लाख रुपए हर एक घर को पहुंचाने का, ये क्या? अरे वो तो चुनावी जुमला था, हमने बोल दिया। ये बोला नहीं, आप बोलिए ये बोला है या नहीं? अगर नहीं बोला तो मैं मेरी बात वापस लेता हूं। बोला है तो दिक्कत क्या है भाई? आपके पास तो डबल इंजन सरकार है। अगर किसके पास शक्ति नहीं है, हुकूमत नहीं है, अब हमारे ठाकुर साहब को बोलेंगे तुम करो, वो क्या करेंगे? क्योंकि अब उनको सरकार ही नहीं दिया। एक बार सरकार देख के देखो, फिर डबल इंजन का और ट्रिपल इंजन कर। अब तुम्हारे पूरे इंजन खराब हो गए, एक इंजन तो चलती नहीं, इसीलिए बार बार बदलते हो। गुजरात में कितने चीफ मिनिस्टर हो गए? 6 साल में कितने चीफ मिनिस्टर हो गए? 3 हो गए, क्योंकि ये इंजन खराब होते जा रहा है। कोविड में खराब हुआ, जल्दी निकाल दिया, और कोई उनकी बात नहीं सुना, उसको निकाल दिया। अरे यहां आप 8-9 साल वहां रहने के लिए तैयार हो, यहां के मुख्यमंत्रियों को 2-2 साल में निकाल रहे, मेयर को निकालते ना साल में, वैसा आप कर रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि आपकी सरकार यहां पर ठीक काम नहीं कर रही। तो इसलिए बार बार चीफ मिनिस्टर बदलने के बजाय आप कांग्रेस को इस बार वोट दो, हम एक पुख्ता सरकार, स्टेबल सरकार हम देंगे, हम काम करके दिखाएंगे। हम काम पहले भी किए हैं, आज भी करने की ताकत रखते हैं। जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो गरीबों को हमने नरेगा योजना दी, खुद सिक्योरिटी एक्ट दिया, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में कहीं मिड डे मील दिया और फ्री एजुकेशन, ये सारे स्कीम हमने किए। यहां पर उल्टा हो रहा। आप बताइए, मोदी जी आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद एक तो सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? बना नहीं, क्यों? अरे सरकारी मेडिकल कॉलेज बना तो ही गरीबों के बच्चे वहां पर पढ़ेंगे ना। सब प्राइवेट, सब चीज को प्राइवेट, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, डिग्री कॉलेज प्राइवेट, हाई स्कूल्स प्राइवेट। यहां पर तो ये हालत है, बहुत से सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, 20,000 क्लासरूम नहीं बने, 28,000 टीचर्स की भर्ती नहीं हो गई। क्या आप देश का उद्धार करने वाले हो? बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते और ऊपर से बोलते मैं बहुत डेवलप कर रहा हूं, अभिवृद्धि है, और कांग्रेस को इतना गालियां देते हैं। तो कई भाषण आपके पास भी बोले होंगे, मैं नहीं सुना, लेकिन टीवी में नहीं सुना था। क्या कहते हैं? उठते ही गालियां देते हैं। वो अब अपनी घर के पूजा मंदिर में जाके
मंत्र तो नहीं पढ़ते, नमस्कार नहीं करते, लेकिन कांग्रेस को जरूर गालियां देते बाहर निकलते, इतने गालियां देते हैं। वो अपने आप के लिए एक बात कही थी उन्होंने, कांग्रेस वाले और दूसरे लोग मेरे को रोज 2 किलो गालियां देते, बोला रोज 2 किलो। अरे आपको अपोजिशन वाले 2 किलो गालियां देते हैं, ऐसी अगर समझ है, और आप कांग्रेस को तो रोज गालियां देते हैं, हम तो आप 2 किलो गालियां खा रहे, तो कांग्रेस वाले 4 कुंटल गालियां खा रहे, हर एक को गालियां देते। नेहरू जी का नाम लो, पंडित जी के, अपना वल्लभ भाई पटेल का, महात्मा गांधी जी का, किसी का भी हमारे से झगड़ा लगाना, डिवाइड करना, एक से एक ऊपर रखना, नीचे। अरे आप देश बनाने के लिए आए हो क्या देश को बिगाड़ने के लिए? इसीलिए तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की, सबको लेकर चलो, सबके साथ चलो। तो वो काम हम कर रहे हैं, हम पहले भी किए, आज भी कर रहे हैं। हमारे लोग देश के आजादी के लिए अपना खून बहाए, जेलों में गए, गोलियां खाई, यहां तक कि देश को बचाने के लिए, देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी अपनी प्राण दी। है ऐसा कोई बीजेपी में? सबके प्राण लेने वाले हैं, देने वाले कोई नहीं है। राजीव गांधी जी, उनका प्राण चले गया, बलिदान दिए, कैसे लिए? क्या कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा था चेन्नई में? क्या किसी वजह से? लेकिन उन्होंने देश को अखंड रखना, एक रखना, इसीलिए वो चाहते थे। और चंद संगठन उस विचार के खिलाफ थे, उन्होंने उनको भी खत्म कर दिया। अरे ऐसा देश के हमारे 2 प्रधानमंत्री अपनी कुर्बानी दी। पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर बेन सिंह ना, उन्होंने अपना प्राण दिया टेररिस्ट के एक्टिविटीज में। आप क्या करें भाई? कुछ नहीं करे, सुबह शाम उठते ही कांग्रेस को गाला दिया। 70 साल में तुमने क्या किया? यही बोलते रहेंगे। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे लोग जो काम किए हैं, और वो भी विभिन्न पार्टियों को लेके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को लोकतंत्र के रूप में खड़ा किया। बाबा साहब अम्बेडकर जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, लेकिन देश एक रखना, सब विचारधारा के लोग एकत्रित होना और उन्हीं के हाथ से संविधान बनाना, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना। आपको आजादी, बोलने का हक, लिखने का हक, काम करने का हक, हर चीज उस संविधान में है। तुम एक एक खींच ले रहे हो। कोई ज्यादा बोलता है उसको जेल भेजते हो, जो ज्यादा देश के बारे में लिखता है उसको भी अंदर डालते हो। आजकल टीवी लोगों को भी छोड़े नहीं, इसीलिए बहुत से टीवी हमारा जरा कवर भी बहुत कम करते हैं, लिखते भी जरा कम। अगर मोदी जी का एक पेज आया तो हमारे 2 कॉलम कहीं तो दिखते हैं, क्योंकि उनको भी डर, सबको डरा रहे। अरे भाई, ये देश ब्रिटिशों को नहीं डरा, तुमको डरेगा। ये लोग तुमको डरेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। और ये संविधान इतना मजबूत है
उस संविधान को खत्म करने की बात ये लोग करते हैं और लोकतंत्र को खत्म करने की बात ये करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप सभी मिलकर इस बार एक मौका कांग्रेस पार्टी को दो, जिताओ, ये मेरी विनती है। आप सब हाथ के निशान पे आप मोर लगा बटन दबाओ और पार्टी को चुन के लाओ और हम कड़ी मेहनत से ऑनेस्टी से काम करके आपको दिखाएंगे। ये कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं और हमारे कैंडिडेट यहाँ पर ठहरेंगे। आपके पास तो आते रहते हैं, अब हमारे मौजूदगी में भी वो एक बार आपसे विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। इसीलिए आप हाथ को वोट देकर एक देश में, एक गुजरात में नई सरकार आपकी स्थापना होनी चाहिए। धन्यवाद। विश्वनगर से हमारे कैंडिडेट आदरणीय किरीट पटेल जी, मेसाना से आदरणीय भाई पीके पटेल जी, ऊंजा से अरविंद पटेल जी, केरालू से मुकेश चौधरी जी, बीजापुर से आदरणीय सीजे छाबड़ा जी, कड़ी से आदरणीय परवीन परमार जी, सभी साथी मंच पर उपस्थित हैं। ઘણા વખતથી આપ સૌ અહીંયા આવ્યા, આપ સૌએ કોંગ્રેસની વાત સાંભળી એ બદલ કોંગ્રેસ પક્ષ વતી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય જય ગરવી।